Welcome students in biology class. In previous video we described about the pollen pistil interaction. I have also described there, that is the entry of pollen grain inside the ovules. Okay. So in case of entry, after them, that is the fertilization occurs. Fertilization, everyone know what is the fertilization? Means fusion of gametes. Clear? Fusion of gametes, this is known as the fertilization. That is occur inside the ovules. But when we describe about the angiospermic plant, there is the specialized fertilization occur. This is known as the double fertilization. After that, the next topic जो टॉपिक है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन, जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब किया गया है इस वीडियो में. ओके, तो वाई वी आर टेक द पोस्ट फर्टिलाइजेशन थ्रू दिस वीडियो, you know about them, what happened actually after the fertilization in flowers. Okay, so first we describe about the fertilization. What is the fertilization? Fertilization is a process in which there is fusion of two gametes, that is produce the young ones similar to the parents. Okay, ये रिप्रोडक्शन हो गया. उसी से दूसरा जो है टर्म उसमें रिलेटेड है आपका फर्टिलाइजेशन, मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. दैट इज क्लियर. तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है, दिस नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन इन 1898 इन लिलियम एंड फ्रिटलेरिया. दो प्लांट है जिसमें इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था. डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्क्राइब किया था? नवास्चिन ने. दिस इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. ठीक है. व्हाट हैपन इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? द pollen tube release the two male gametes when pollen grain, that is enter pollen tube, when the pollen grain germinate through the tube, goes inside the style, they contain two male gametes. One male gametes fuses with the egg cell to form diploid zygote. The process is called syngamy or generative fertilization. इस प्रोसेस को syngamy बोलते हैं या generative fertilization, because male gamete that is fused with the egg cell, means that is formation of zygote. The diploid zygote finally developed into the embryo after fertilization. जो यही zygote है developed किस में होता है? embryo में. And the second male gamete fuses with the two polar nuclei of secondary nucleus in the central cell to form the triploid primary endosperm nucleus. जो second male gametes which are present in the pollen tube, they are fused with the central cell, means polar nuclei, and form the triploid primary endosperm nucleus, that is form primary endosperm nucleus. So the process is called the triple fusion, as three haploid nuclei are involved in the fusion. इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, वेयर दैट इज थ्री न्यूक्लियस आर फ्यूज्ड. सो व्हाई दैट इज टर्म दैट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशंस? बिकॉज इन ए सिंगल embryo sac there are two time fertilization occur. One that is male gamete, one male gamete fused with the egg cell, another fused with the polar nuclei. So this is known as a double fertilization. And another term that is given here, triple fusions. What is the triple fusions?
The second male gametes that is fused with the central cell or polar nuclei, means this is commonly known as the fusion of three nucleus. So this is known as triple fusions. Okay. After triple fusions, the central cell become the primary endosperm cell. जो सेंट्रल सेल है वो क्या बन जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है, विच गिव राइज टू एंडोस्पर्म वाइल द जाइगोट डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो. और जाइगोट जो होता है एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है दैट इज गिव राइज टू द एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है. क्लियर? As both the fusion syngamy and triple fusion occur in an embryo sac, so the term that is the phenomenon is termed as the double fertilization. इसलिए इस टर्म को डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया. क्लियर हुआ है? ओके, यू सी हियर ये डायग्राम दिया हुआ है आपका. ठीक है, यहाँ आप देखिए ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट के यहाँ तक है, दैट इज शोइंग हियर. दे कंटेन टू मेल गैमेट्स. यहाँ पर दिख रहा है आपको दो मेल गैमेट्स. ठीक, one male gamete that is fused with the egg cell, another that is fused with polar nuclei या central cell. ठीक है, जो ये फ्यूज होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. क्लियर है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और जो ये फॉर्म करता है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन्स दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो सेल फॉर्मेशन करता है, और जो एग सेल है वो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है. और इनसाइड अ सिंगल एम्ब्रियो देयर आर टू टाइम फर्टिलाइजेशन अकर्स, सो दिस इज नॉट डबल फर्टिलाइजेशन. क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. द मेजर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स. ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है जिसमें एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और मैच्योर स्टेज में ओव्यूल्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू सीड्स एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट्स. ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एन एंडोस्पर्म. फर्स्ट वी डिस्क्राइब अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट मीन्स दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. द प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. ये कुछ स्टेप में होते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइडेड. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किससे बना हुआ है? यू नो अबाउट देम, ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू बना हुआ है. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. इसके थ्रू ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, और ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो टिश्यू होता है दे कंटेन द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. सेकेंड स्टेप्स है प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू अंडरगोज सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू है, ठीक है, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है दैट इज गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. एट दिस स्टेज द कॉल द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं. एंड थर्ड, जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तो किसका होता है? वॉल का. थर्ड स्टेप से वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द पेरीफेरी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर. ठीक है, सेल वॉल पेरीफेरी जो साइड होता है दैट इज प्रोसीड टुवर्ड द सेंटर एंड एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर. और एंडोस्पर्म जो होता है सेलुलर हो जाता है. अब एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली देयर आर थ्री टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डिपेंडिंग अपॉन द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन. एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड सेलुलर एंडोस्पर्म,
and third halovial endosperm. Okay, so what is the nuclear endosperm? The primary endosperm nucleus divide repeatedly without wall formation to produce a large number of free nuclei. ठीक है, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मीन्स दैट इज ओनली रिपीटेडली डिवीजन ऑफ nucleus without wall formations. For example, that is occur in case of maize, wheat, rice, sunflower, etc. Okay. Another example, that is also in several cases the cell wall formation remain incomplete. कुछ कंडीशन में सेल वॉल फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं हो पाता. फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट हैज़ द मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म means called coconut meal in the outer part of free nuclear as well as the vacuole endosperm. कोकोनट जो मिल्क होता है दिस द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है इन द सेंटर. ओके, सेकेंड है सेलुलर एंडोस्पर्म. एवरी डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म डिवीजन चालू हो जाता है. Therefore endosperm becomes cellular from the very beginning. और शुरुआत से ही वह सेलुलर फॉर्म में फॉर्मेशन डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है. जस्ट लाइक इन केस ऑफ बाल्सम, धतुरा, पिटोनिया एटसेट्रा. थर्ड वन हेलोवियल एंडोस्पर्म. इट अकर्स इन ऑर्डर हेलोवियल्स ऑफ मोनोकार्ड्स. द एंडोस्पर्म इज ऑफ द इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप्स. ये दोनों के बीच का है हेलोवियल एंडोस्पर्म. द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द ट्रांसफर साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म टू अनइक्वल सेल, लार्जर माइक्रोपाइलर एंड स्मॉलर चॉलेजल्स. माइक्रोपाइलर सेल ग्रो फास्टर देन द चॉलेजल्स वन. ठीक है, और इस तरह कंटिन्यूस में डिवीजन होता है. इसका एग्जाम्पल है एस्फोडिलस. क्लियर? ओके, व्हाट इज द फेट ऑफ एंडोस्पर्म? ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म क्रसेस द न्यूक्लियस न्यूसेलस. इट इज इटेन बाय द ग्रोविंग एम्ब्रियो. जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है वो डिवाइड होकर के डिवीजन जब होता है तो जो रिजर्व फूड होता है वो कंज्यूम हो जाता है. द एंडोस्पर्म में persist in the seeds when the latter is called endospermic or albuminous seeds. ठीक है, कुछ एंडोस्पर्म परसिस्ट रह जाता है, सीड में प्रेजेंट रह जाता है सीड फॉर्मेशन के बाद भी, उसको हम एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कैस्टर, सिरल, कोकोनट. In others, the endosperm is completely absorbed by the growing embryo and the food reserve gets stored in the cotyledons. और दूसरे तरह के एंडोस्पर्म में जो फूड होता है completely absorb हो जाता है through the embryo and food reserve that is stored in the cotyledon regions. Such type of seed is called non-endospermic or एक्स albuminous या नॉन albuminous. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पी, बीन, सनफ्लावर. दैट इज क्लियर? ओके, यू सी हियर इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर. न्यूक्लियस का डिवीजन इसमें हुआ है 1 2 2 3 4. ठीक है, कंटिन्यूस डिवीजन हुआ है. न्यूक्लियस के बाद सेलुलर, न्यूक्लियस के बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वॉल फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये सेलुलर है. एंड थर्ड वन एंडोस्पर्म. फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, देन मीन्स कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस. क्लियर? ओके. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ embryo endosperm, that is development of embryo. The first stage of development of the plant zygote is the predetermined mode of development, means
embryogeny. It gives rise to originated या ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल कॉल्ड द एम्ब्रियो. ठीक है, जो एंडोस्पर्म है या जाइगोट है, दैट इज डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो दैट हैज़ पोटेंशियली टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट, जिसके थ्रू कंप्लीट फॉर्म प्लांट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियोजेनी इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट. You see in the diagram, in a typical dicot the zygote elongated and then divided by the transfer wall into the two unequal cell. ठीक है, ट्रांसफर वॉल को डिवाइड करके दो अनइक्वल सेल में डिवाइड होता है. द लार्जर बेसल सेल इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल, जो लार्जर पार्ट है ऊपर वाला, दैट इज नोन एज द सस्पेंसर सेल. द अदर टुवर्ड द एंटीपोडल एंड इज टर्म इज द टर्मिनल सेल आर एम्ब्रियो सेल्स. ठीक है, दूसरा पार्ट जो है एम्ब्रियो सेल बोलते हैं या टर्मिनल सेल बोलते हैं. द सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसफरली अ फ्यू टाइम्स प्रोड्यूस अ फिलामेंट सस्पेंसर ऑफ 6 to 10 सेल. यह कॉन्टिन्यूस डिवाइड करके 6 to 10 सेल का बन जाता है सस्पेंसर. द सस्पेंसर हेल्प्स इन द पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म. ठीक है, एंडोस्पर्म इसको पुश करता है. The first cell of the suspensor toward the micropylar end becomes swollen and function as haustorium. ठीक है, यह हास्टोरियम की तरह वर्क करता है. The haustorium has wall in growth similar to transfer cell. The last cell of the suspensor of at the end of adjacent the embryo is known as hypophysis. जो डिवीजन का लास्ट पार्ट है उसको हम हाइपोफाइसिस टर्म यूज करते हैं यहाँ पर. हाइपोफाइसिस लेटर गिव राइज टू द रेडिकल एंड रूट कैप, और इसके थ्रू रेडिकल और रूट कैप का फॉर्मेशन होता है. द एम्ब्रियो सेल अंडरगोस 2 वर्टिकल डिवीजन एंड 1 ट्रांसफर डिवीजन टू फॉर्म 8 सेल अरेंज इन 2 टायर्स. ठीक है, 8 सेल का स्ट्रक्चर होता है, 2 टायर में यह अरेंज होता है. एपीबेसल, जो टर्मिनल पार्ट है उसको एपीबेसल बोलते हैं. एंड हाइपोबेसल नियर द सस्पेंसर, सस्पेंसर जो वाला पार्ट है उसको हम हाइपोबेसल बोलते हैं. द एपीबेसल इवेंचुअली फॉर्म द 2 cotyledons and the plumule. Only 1 cotyledon is produced in the monocots. The hypobasal cells produce the hypocotyl except its tip. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 cotyledons. द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल कॉटिलिडन इज कॉल्ड एपिकॉटिल, जो ऊपरी पार्ट होता है उसको एपिकॉटिल बोलते हैं. इट टर्मिनेट विद द स्टेम टिप कॉल्ड प्लूम्यूल्स. इसमें स्टेम टिप टर्मिनेट होता है, इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं. द पार्ट बेलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड हाइपोकॉटिल. कॉटिलिडन जो बेलो पार्ट होता है उसको हम हाइपोकॉटिल बोलते हैं. विच टर्मिनेट इन द रूट कॉल्ड रेडिकल, और इसके थ्रू रूट का फॉर्मेशन होता है, इसको हम रेडिकल बोलते हैं. द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप, और ये रूट टिप रूट कैप के थ्रू कवर्ड होता है. दैट इज क्लियर. ओके, एम्ब्रियो में कुछ पार्ट आपका ग्लोबुलर हार्ट शेप एम्ब्रियो की डिस्कस कर रहे हैं. जैसे इन केस ऑफ डाइकॉट, in which there is the zygote divides certain amount of endosperm form, ensure proper nutrition is provided to the developing embryo. The comparatively larger daughter cell situated toward the micropylar cell is called the basal cell.
This cell divide transversely and give rise to the suspensor cell. The zygote give rise to the pro-embryo and subsequently the globular, heart-shaped and mature embryo. ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जो अभी जस्ट डाइकार्ड एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं. उसके पहले जो था उसी के बारे में जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज डेवलपमेंट द ग्लोबुलर शेप. ठीक है, तो यू सी ओनली थ्रू द डायग्राम. ये है आपका फर्टिलाइजेशन के बाद, इसमें दो डिवीजन होता है, सस्पेंसर और एम्ब्रियो सेल बनता है. सस्पेंसर अगेन डिवाइड करके 8 सेल बन जाता है. ठीक है, डर्मेटोजन सेल बोलते हैं इसको. सस्पेंसर, रूट कैप, रूट टिप एंड देयर इज द ग्लोबुलर शेप्ड स्ट्रक्चर आर फॉर्म हियर. ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूस डिवीजन बन के दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर्स. जो नीचे वाला पार्ट होता है कॉटिलेडन, दे कंटेन द रेडिकल्स हियर. ठीक, एंड प्लूम्यूल्स, दिस पार्ट दैट इज डेवलप्ड टू द shoot apex and radical that is formation of root, and this is the structure of dicot emb. Okay, second I had development of embryo in monocot. Embryo of monocot process only one cotyledons at one ends. ठीक है, only one cotyledon is present होता है one end पर of the embryonal axis, and this cotyledon is called the scutellum. इस cotyledon के जो इंड पार्ट होता है उसको हम स्कूटेलम भी बोलते हैं. एट द लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज्ड इन द अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा. कोलियोराइजा किसको बोलते हैं? मीन्स दैट इज द जो रूट कैप है और रेडिकल पार्ट जो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते हैं, दिस इज नोन एज द कोलियोराइजा. द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, जहाँ से अटैच होता है उसके अबव वाले पार्ट को हम एपिकॉटल बोलते हैं. दिस इज नोन एज द एपिकॉटल. द एपिकॉटल्स हैज अ शूट अपेक्स and few leaf primordia enclosed in the hollow foliar structure called the coleoptiles. इसके अंदर का लीफ फोलियर स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं. दैट इज अकर इन केस ऑफ ग्रास, बनाना, बम्बूज. ओके, यदि स्ट्रक्चर के थ्रू देखिए दैट इज क्लियर अबाउट देम हाउ कैन द डिवीजन अकर्स इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो. यहाँ भी जाइगोट पहले डिवाइड करके दो भाग ट्रांसफर डिवाइड होता है, बेसल और टर्मिनल सेल में डिवाइड होता है. द बेसल सेल प्रोड्यूसेस ए लार्ज स्वॉलन वेस्कुलर सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करते हैं. इट में फंक्शन एज हास्टोरियम की तरह वर्क करता है. द टर्मिनल सेल डिवाइड बाय द एनोदर ट्रांसफर वॉल अप टू फॉर्म सेल. द टॉप सेल आफ्टर द सीरीज ऑफ डिवीजन फॉर्म प्लूम्यूल एंड सिंगल कॉटिलेडन्स. प्लूम्यूल को फॉर्मेशन करता है और सिंगल कॉटिलेडन बनता है. एंड कॉटिलेडन कॉल्ड स्क्यूटेलम, इसके कॉटिलेडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं. ग्रो रैपिडली एंड पुशेस द टर्मिनल प्लूम्यूल्स टू वन साइड, और वन साइड ये प्लूम्यूल को फॉर्मेशन करता है. द प्लूम्यूल्स कम्स टू लाई इन डिप्रेशन. द मिडल सेल आफ्टर मैनी डिवीजन फॉर्म हाइपोकॉटिल्स एंड रेडिकल्स. ओके, it also added the few cells of suspensor. In some cereals both plumule and radical get covered by sheath. कुछ जो cereals होते हैं उसमें plumule और radical दोनों covered होते हैं. Developed from scutellum, जो scutellum से developed होता है, that is called the coleoptile and coleorhiza respectively. ठीक है, प्लूम्यूल कवर्ड होता है उसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं, रेडिकल कवर्ड होता है उसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं. सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा? द फर्स्ट थिंग, इन केस ऑफ in coleoptile
The epicardial bearing shoot apex and lip primordia is enclosed in the foliar structure called coleoptiles. Okay, in coleorhiza में first point क्या है? The radical and root cap are enclosed in sheath called coleorhiza. Second है coleoptile has a terminal pore for the emergence of first leaf. फर्स्ट लीफ ओरिजिनेट के लिए इसमें पोर होता है. कोलियोराइजा में कोलियोराइजा इज द सॉलिड स्ट्रक्चर्स. थर्ड पॉइंट है ये कोलियोप्टाइल में, इट प्रोटेक्ट द प्लूम्यूल ड्यूरिंग द इमरजेंस फ्रॉम सॉयल. ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कोलियोराइजा. थर्ड पॉइंट है इट डज नॉट प्रोटेक्ट द रेडिकल्स ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस इनटू द सॉयल. एंड लास्ट पॉइंट है कोलियोप्टाइल का, कोलियोप्टाइल आफ्टर इमरजेंस फ्रॉम सॉयल ड्यूरिंग जर्मिनेशन बिकम्स ग्रीन एंड डज फोटोसिंथेसिस. जब सॉयल से ये ओरिजिन होता है, जर्मिनेट करता है तो ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है. कोलियोराइजा डज नॉट कम आउट ऑफ द सॉयल, ये सॉयल से बाहर नहीं आता, इट रिमेन नन ग्रीन, और ये नन ग्रीन कलर का ही रहता है. एंड नेक्स्ट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट है आपका पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प में डिफरेंट. इट इज़ द अनयूज्ड न्यूक्लियस इन द सीड्स. पेरिस्पर्म जो होता है दिस द अनयूज्ड न्यूक्लियस न्यूसेलस इन द सीड. सीड में जो न्यूसेलस कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता. और पेरिकार्प इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट्स. सेकेंड पेरिस्पर्म में इट इज़ द पार्ट ऑफ सीड, ये सीड का पार्ट है. पेरिकार्प इट इज़ द पार्ट ऑफ फ्रूट्स. पेरिस्पर्म में थर्ड पॉइंट इट इज़ यूजली ड्राई. पेरिकार्प जो होता है ड्राई होता है, और पेरिकार्प इट इज़ द ड्राई और फ्लैशी, दोनों तरह के हो सकते हैं. पेरिस्पर्म इट इज़ नॉट नॉन फंक्शनल, इट इज़ ऑफन नॉन फंक्शनल फॉर सीड, यह नॉन फंक्शनल होता है सीड के लिए. पेरिकार्प इट इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द फ्रूट्स. एंड लास्ट पॉइंट पेरिस्पर्म इज प्रेजेंट इन ओनली अ फ्यू सीड्स, जबकि पेरिकार्प दैट इज प्रेजेंट फाउंड इन ऑल फ्रूट्स, सभी फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. और एक डिफरेंट और दिया गया है, एंटोगमेंट एंड टेस्टा. इट इज़ द कवरिंग ऑफ ओव्यूल्स. एंटोगमेंट जो होता है इट इज़ द कवरिंग ऑफ ओव्यूल्स. टेस्टा क्या करता है, इट इज़ कवरिंग ऑफ सीड. एंटोगमेंट का सेकेंड पॉइंट है इट इज़ थीन वन ऑफ टू लेयर. टेस्टा भी इट इज़ क्वाइट थिक एंड वन लेयर होता है. इंटेगमेंट का जो सेल्स होता है दिस इज द लिविंग, जबकि टेस्टा का जो सेल होता है दे आर डेड. इट एराइजेस फ्रॉम द चार्जा एंड ऑफ द ओव्यूल्स. इंटेगमेंट जो होता है इट एराइजेस कहाँ से होता है, चार्जल एंड ऑफ ओव्यूल्स होता है. टेस्टा कहाँ से ओरिजिन होता है, इट डेराइव फ्रॉम द आउटर इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. Okay, so this is the different steps process that is occur in case of dicot embryo, monocot embryo development, as well as the differentiate. We also discuss about the differentiate between coleoptile, coleorhiza, integument, testa, perisperm, pericarp. Clear? Okay, thank you.